Hello students, the political science most important top selective sure short 2025 examination regular ex-regular ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପାର୍ଟ 2 ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 21 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଆମେ ଏବେ ପଢିଥିଲେ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟି ଦୁର୍ବଳତା, two weaknesses or demerits of democracy, tax regular ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏକ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାରରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଏଟା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା ଏହା ବ୍ୟୟବହୁଳ ସରକାର ଅଟେ। 3ରେ ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। It's expensive, not suitable for emergency, and it focuses more on quantity than quality. Over. Next 23 number. ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଏଟା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସପ୍ତମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ଦର୍ଶାଏ ନା କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ, ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ। କି କ୍ଷମତା? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ୍ଷମତା, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା। କେତୋଟି ତାଲିକାରେ? ନା 3ଟି ତାଲିକାରେ। କ'ଣ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, ଏତିକି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର, 73rd and 74th Amendment Act, ମାନେ 73 ଓ 74ତମ ସଂଶୋଧନ ଧାରା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, 73ତମ ସଂଶୋଧନ ଧାରା 1992ରେ ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, 74 ହେଉଛି 1993ରେ ଏହା ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ। ଉଭୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମନ ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ ଫର ଓମେନ୍, ST, SC ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ 33% ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରାଇଟ। ତାପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। 73 ବୋଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, 74 ବୋଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବ 25 ନମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ? ରିକାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ସାଧନ। ଏ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ପ୍ରମିସେସକୁ ସେମାନେ ଫୁଲଫିଲ ନ କରିପାରିଲେ, ସେଠାକାର ସରକାର ସେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଏହି କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 26 ନମ୍ବର। ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ? ତ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ବା ଜାତି ଗଠନର ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସେହିଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। 2ରେ ତମେ ମିନିଂ ଲେଖିବ। ଜାତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମାଜରେ, ଏହାକୁ ଜାତୀୟତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବକୁ ଜାତୀୟତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଜାତି ଗଠନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 27। ଆତଙ୍କବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟେରୋରିଜମ? ଟେରୋରିଜମ ଇଜ an anti-militant group. ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜାତି ଗଠନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ। ଦଳେ ଲୋକ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଟେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପରିଚୟ ସଂକଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଯିବା 28 ନମ୍ବର। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। ରାଇଟ। କମ୍ୟୁନାଲିଜମ। ଏହାର 2ଟି କାରଣ ହେଉଛି, ଏକ, ଧର୍ମ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଇତିହାସର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକକରଣ, ଆଉ
धर्म गोष्ठी गुड़िकर अभ्युदय। नेक्स्ट आंचलिकतावाद कौन? ये फर्स्ट पॉइंट एमती लिखो, यह जाति गठन एक मुख्य आह्वान गणतंत्र मध्य ना एरिया फिलिंग को रीजनालिज्म बोली कहबे। आंचलिकतावाद तमे गोटे एरिया रो आमे गोटे एरिया रो, भारत भली राष्ट्र रे मध्य ए प्रकार आंचलिक भेदभाव जो देखा जाउछि ताको आंचलिकतावाद बोली कहा जाए। तमे लिखो एटा, तापर यार कारण भी लिखो, जातिगत भाषागत वैषम्य आर मुख्य कारण। नेक्स्ट दिबा 30 नंबर, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन केबे केउठारे हेतिला? 1944 ठारे हेतिला वाशिंगटन डीसी ठारे। एठी दुईटी मुख्य संगठन अंतर्जातीय मुद्रा पांठी और विश्व बैंक रो प्रतिष्ठा होइथिला। नेक्स्ट धरित्री सम्मेलन हैट्समेंट। ये घटना 1992 ब्राजिल रो राजधानी रियो डी जेनेरो ठारे होइथिला। यार मुख्य उद्देश्य थिला परिवेश प्रदूषण को नियंत्रण करवा। राइट 32 को जीवा पंचायत राज व्यवस्था रो दुईटी समस्या। अच्छा, पंचायत राज व्यवस्था रो दुईटी समस्या हला, एक अमलातंत्र चाप प्रेशर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, दुई पांठीर अभाव माने ग्रांटिंग एड आर्थिक असुविधा जो यह सफल हो पारने। तेणु इलिटरेसी भी गोटे पॉइंट हवार ये है तार समस्या। तार उद्देश्य कौन बोले, पंचायत राज व्यवस्थार उद्देश्य 33 नंबर जदि आम देखा तो पॉइंट नंबर 1 लिखा ग्रामांचल विकास, पॉइंट नंबर 2 लिखा ग्राम्य स्तर में गणतंत्र को सफल करवा, पॉइंट नंबर 3 लिखा स्थानीय समस्या समाधान करवा। 3टा उद्देश्य। 34 नंबर चल अंतर्जातीय मुद्रा पांठी दुईटी कार्यावली। अंतर्जातीय मुद्रा पांठी 1985 मसीहारे होइथिला। यार मुख्य कार्य होची पछुआ राष्ट्र बा गरीब राष्ट्र माननको सुलभ मूल्य रे आर्थिक साहाय्य प्रदान करने सहित सेमानंकर अर्थनैतिक विकास पाई आवश्यक नीति रे सहयोग करवा। राइट 34 नंबर नारीवाद कौन? नारीवाद गोटे समाज रे नारी और पुरुष मनक मध्य अधिकार को लेकिन जो वाद विवाद सृष्टि होची, जोठी नारी माने पुरुष मानक ठारो द्वितीय स्थान बोली अनुभव करछंती, से चिंताधारा को नारीवाद कहा जाए। राइट 35 नंबर परिवेश आंदोलन आभिमुख्य कौन? दुईटा का, एक परिवेश सुरक्षा, दुई जंगल रक्षा, आ गोटे भी लिखि पारिबा प्रदूषण नियंत्रण। ओवर 36 जनमत बा प्लेबिसाइट कहले कौन बुझ? देखो ये गणतंत्र एक्स रेगुलर पिलान ये गणतंत्र प्रत्यक्ष गणतंत्र एक मुख्य साधन अटे। एठारे लोक माने आईन तैयारी हवा पूर्व तांकर मत संग्रह करा जाए। ये जो प्लेबिसाइट बोलिबा शब्दटी प्लेबिसिटम शब्दर अर्थ शब्दरू आनित। आर अर्थ होची भोटर मानक निकटरे निवेदन। नेक्स्ट रेफरेंडम बोले गणभोट कहले कौन बुझे? एटा भी सेम चिंतिका एक्स रेगुलर पिला मन पई। देखो प्रत्यक्ष गणतंत्र एक साधन एटा जोठारे सेठाकार व्यवस्थापिका आईन तैयारी करबा पूर्वरू उक्त आईन उपरे जनमत संग्रह करथाए, यह को गणभोट कहा जाए। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 38 रेगुलर एक्स रेगुलर पाई भारतीय संघीय व्यवस्थार ऐकिक वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन? एक संविधान, एकक नागरिकत्व, तापरे जरूरीकालीन व्यवस्था, तापर 4 नंबर होची दृढ़ केंद्र सरकार बा केंद्र सरकार अधिक नियंत्रण। नेक्स्ट 39 नंबर ए भी इंपोर्टेंट साल्ट 1, तापर देखिबा साल्ट 2 दीटा तक विषय। देखो साल्ट 1 बोलिबाटा 1972 रे हेतिला। राइट ये ट्रीटी अमेरिका और रशिया मध्य रे हेतिला।
सेम सेमती एटा खाली वर्ष चेंज हम साल्ट 2 टा 1979 रे हिथिला सेम सोवियत रशिया और अमेरिका मध्य उद्देश्य कौन थिला माने परस्पर जो मिसाइल कार्यक्रम अस्त्र शस्त्र उत्पादन रे किछि नियंत्रण आनिबा विषय रे फाइनल करथिले। नेक्स्ट चलो स्टार्ट 1 यह एक चुक्ति जहाँ आमर अमेरिका और रशिया जितेबाला कि अमेरिका रो राष्ट्रपति थिला तुमर जॉर्ज बुश से समय कथा यहाँ HW बुश आउ रशिया रो मिखाइल गोर्बाचोव ए दी जन मध्य मॉस्को माने रूस रो राजधानी ठारे राजीनामा हिथिला ओके 1991 रे उद्देश्य थिला आणविक अस्त्र शस्त्र और बम उत्पादन रे ह्रास करबा पाई परिमाणात्मक और गुणात्मक ह्रास करबा पाई सिठी स्वाक्षर होइथिला। 41 धारा 1 कौन धारा 1 होची भारत राष्ट्र मानकर एक संघ यूनियन ऑफ स्टेट 356 राज्य जरूरी परिस्थिति बा राष्ट्रपति शासन धारा 280 अर्थ आयोगर नियुक्ति धारा 243 संविधान पंचायत राज व्यवस्थार संज्ञा वर्णना करछि। 44 धारा 44 रे भारत रे एक प्रकार दीवानी आईन विषय चर्चा अछि। 262 नदी जल बंटन 248 अवक्षिप्त अवशिष्ट क्षमता 249 राज्य सरकार अनुरोध क्रमे केंद्र सरकार चाहिए राज्य तालिका कौन सी विषय उपर आईन प्रस्तुत कर धारा 249। अच्छा नेक्स्ट देखा संशोधन धारा 52 दल बदल नीति रोकवा 73 ग्रामांचल सहित शासन व्यवस्था सहित जड़ित 74 संशोधन आईन हूँ 1993 यह सहरांचल सहायता शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्योटो घोषणानामा ये केबे हिथिला 1997 रे हिथिला राइट क्योटो ठारे हिथिला। यार उद्देश्य थिला प्रदूषण माने परिवेश प्रदूषण मुख्यतः वायु प्रदूषण को नियंत्रण करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन CTBT कौन ये गोटे राजीनामा व्यापक परमाणविक अस्त्र निरोध चुक्तिटा एटा अमेरिका और रशिया मध्य रे होइथिला बिल क्लिंटन थिला 1994 रे एटा को कार्यकारी कले 1996 रे किंतु आको विरोध करथिले भारत पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट मेंटो सरकार 45 नंबर जेतेबेले दुई रु अधिक राजनैतिक दल मिसी सरकार गठन करती आपको मेंटो सरकार कह जाए। यह भारतीय दलीय व्यवस्थार एक मुख्य वैशिष्ट्य बोल के आग लिखी तापर लिख। नेक्स्ट 46 दौत सरकार यह संघीय व्यवस्थार एक मुख्य वैशिष्ट्य अटे जे एठारे दुईटी सरकार थाए जमती केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार जमती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्य सरकार जमती गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आंध्रा उत्तर प्रदेश इत्यादि इत्यादि यही व्यवस्था को दौत सरकार व्यवस्था बोली कह जाए। क्षमता बंटन तो तुमको सप्तम अनुच्छेद कहीदेली। न्यायिक स्वतंत्रता विषय जावा 48 नंबर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यह प्रत्येक संघीय राष्ट्र एक मुख्य वैशिष्ट्य अटे जे एठाकार न्यायपालिका सरकार अन्य दुई अंग माने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ठारू पृथक रुहंती एवं एमानंकर निष्पत्ति शेष अंतिम अटे। नेक्स्ट जीवा शीतल युद्ध कहले कौन बुझ शीतल युद्ध कहले से युद्ध जहाँ वास्तव में युद्ध नुहे एक युद्ध भली परिस्थिति जोटा 1945 रु 1991 पर्यंत अव्याहत थिला और 1991 रे यार विलोप हला। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इट्स वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपोर्टेंट कोटा 2 मार्क नहले 3 मार्क मध्ये आसी टेक इट सीरियसली एंड रीड देम भल के पढ़ो। All the best to all of you for your examination 2025.